Hi everyone, Sir Farhan here, guys. Let's start paper 1, multiple choice question of AS level chemistry, May June 2022, variance 13. The duration of this paper is 1 hour 15 minutes now. Let's start with the paper. Question number 1. Which atom? Oops, let me fix it first. Yeah. Which atom has exactly 3 unpaired electrons in the ground state? First of all, 3 unpaired electrons. The second one is ground state, is basically the original state of the element. That's what we have done in the class. So आप सब जानते हैं कि we have aluminum atom. Aluminum has an atomic number of 13. Configuration कर लेते हैं. 10 electrons की जगह neon ले लेते हैं. Okay. Then 3s2 and then 3p1. Obviously, examiner हमसे 3 unpaired electrons पूछ रहे हैं. So this option is going to be incorrect because it has 1 unpaired electron. Okay. Then carbon atom. Carbon has an atomic number of 6. Configuration करोगे, it's going to be 1s2, then 2s2, and then 2p2. So carbon is also incorrect option because it has 2 unpaired electrons. Next is chromium. Chromium has an atomic number of 24. If you remember, हम 18 electrons की जगह argon लिखते हैं. इसके बाद है आपके पास 3d. इसके बाद है आपके पास 4s. 4s contain 1, 3d contain 5. So total we have 6 unpaired electrons in chromium. So chromium is also incorrect, and obviously D is going to be the right answer because phosphorus, अगर हम electronic configuration करें, इसका atomic number 15 है, 10 electrons की जगह neon, then 3s2 and then 3p3. All right, so we have 3 unpaired electrons in phosphorus atom, which is why phosphorus is going to be the right answer. And guys, one thing, जब मैं lecture दे रहा था मैंने आपको कहा था कि whenever examiner is talking about or asking unpaired electrons or paired electrons, आंसर हमेशा स्पिन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मिलेगा. और देखिए मैंने यहाँ स्पिन कॉन्फ़िगरेशन करके ही आंसर डिटरमाइन किया है. Let's move on to the next question. That is question number 2. Which element has the second smallest atomic radius in its group? Okay, second smallest atomic radius in its group. So we have different groups here. Lithium, sodium, potassium, beryllium, magnesium, calcium. This is boron, and this is aluminum, right? So आप सब जानते हैं कि ये second period है आपका, इसलिए principal quantum number 2, sodium and onwards are found in third period of the periodic table, n equals to 3, and these are found in fourth period of the periodic table. So ये दोनों के दोनों fourth period में हैं, तो n equals to 4. Okay. Okay. Second smallest atomic radius in a group. तो आप जानते हैं कि down the group atomic radius increase होता है. तो अगर atomic radius increase होगा तो obviously second smallest atomic radius है, तो ये second atomic radius हो जाएगा जो कि bigger होगा, right? Smallest पूछ रहे हैं वो, तो obviously अगर ये bigger है तो ये smallest होगा और ये second element हो गया. Okay. Similarly, examiner asking second highest electrical conductivity in its period. So obviously across the period number of electrons increases. So across the period number of C of delocalized electrons increases.
electrical conductivity increases. That means कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब हम इसको एक निग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसका एटॉमिक रेडियस भी कम होगा और इसकी सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी। इसकी सबसे ज्यादा, इसकी इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी है, बट सेकंड हाईएस्ट इसकी होगी। ओके, सो आई बिलीव सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 गॉड question number 3. Okay, analysis of the hormone thyroxine gives the results shown. Heating 0.5 gram of thyroxine with aqueous silver nitrate produces 0.4 gram of silver iodide. That's the most important information. Okay. अगर मुझे मास ऑफ सिल्वर आयोडाइड गिवन है तो इसका मतलब मैं मोल्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ से मोल्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड कैलकुलेट करता हूँ। मास है मेरे पास 0.604 ग्राम, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ सिल्वर आयोडाइड के एमआर से। ये आपने खुद से डिटरमिन करना है बाय यूजिंग पीरियोडिक टेबल। आयोडाइड का, आयोडीन का एटॉमिक रेडियस सॉरी आयोडीन का एआर होता है 127 और सिल्वर होता है 108। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में जो है उसके हिसाब से चलेंगे तो 234.8 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.57 into 10 to the power minus 3 moles. Okay, these are the moles of silver iodide. Let's move on to the next part of the question. All of the iodine in the thyroxine sample is converted into silver iodide. Okay, next part of the question. Complete combustion of 0.5 gram of thyroxine produces 232 gram of carbon dioxide. That means from this information I can find the moles of carbon dioxide. तो 232 को डिवाइड कर दें आप 24,000 cm³ से। सो ये रूम कंडीशन है आपके पास, इसलिए 24,000 cm³ से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा 9.67 times 10 to the power minus 3 moles. Okay, then 7.72 cm³ of nitrogen. Okay, fine. हमें नाइट्रोजन भी गिवन है तो इसका मतलब हम नाइट्रोजन का भी मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 7.72 डिवाइडेड बाय 24,000। सो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास 3.22 into 10 to the power minus 4 moles. So we have the number of moles of each substance, right? अच्छा, जो मोल्स मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के निकाले वही मोल्स एग्जैक्टली कार्बन के होंगे बिकॉज 1:1 का रेशियो है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा कार्बन। कार्बन के मोल्स हैं 9.67 into 10 to the power minus 3। अच्छा, जो मोल्स आपने सिल्वर आयोडाइड के डिटरमिन किए हैं एग्जैक्टली वही मोल्स आयोडीन की भी हो जाएंगे क्योंकि 1:1 का रेशियो होगा। तो आयोडीन के मोल्स हो जाएंगे 2.57 times 10 to the power minus 3। आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, सो हम थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद है आपके पास नाइट्रोजन, और आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन मेरे पास N2 फॉर्म में है, तो जब इसको आप एटम में कन्वर्ट करोगे तो ये 2N होगा। तो ये मॉलिक्यूल के लिए आपने निकाला है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो फिर मेरे पास एटम के लिए आ जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखता हूं तो ये हो जाएगा 3.22 exponent minus 3 times 2 is going to be 6.44 into 10 to the power minus 3।
एंड ऑब्वियसली आप सिंपलेस्ट रेशियो डिटरमिन करने के लिए लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे. सो जब लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 9.67 exponent minus 3 divided by answer. So इसको डिवाइड कर दीजिए आप 6.44 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास आ रहा है 15. अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 6.44 इंटू 10⁻⁻, होल्ड, एक मिनट, am I making some mistake? तो 10⁻⁻4 multiplied by 2. Yes, this is -4 guys. This is -4. -4. ये भी -4 है. My goodness. Exponent -3 divided by answer is going to be 15.0. चलें, ये तो सही आया मेरे पास surprisingly. इसको डिवाइड करते हैं 2.57 exponent -3 divided by 6.44 exponent -4. So it's going to be 3.99. That is 4. 3.99 is basically 4. Okay. 3.99 लिख दूं ना, आप बोलेंगे कि सर ने क्या कर दिया है. ये हो गया 4 और इसको डिवाइड कर दीजिए आप 6.44 इंटू 10⁻⁻4 तो इट्स गोइंग टू बी 1. तो कार्बन 15 है, तो कार्बन 15 अगर है तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट और 15 कार्बन एटम इसमें है. ठीक है. 4 आयोडीन है तो 4 आयोडीन इसमें है आपके पास, तो 4 आयोडीन 15 कार्बन एटम है. नाइट्रोजन आपके पास 1 है तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चेक्स उसी के ऊपर अटैच हुए हैं. सही है. That's tough. That's not an easy question. I believe I should say this. How many moles of oxygen are needed to burn 1 mole of ethane if the products of the reaction are water and carbon only? That means कि ये आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्शन है, क्योंकि कार्बन और वाटर बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन रहा. और मैंने आपको ये बना के दिया था क्लास में, याद है आपको जब हमने एल्केन पढ़ा था. सो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं C2H6 एंड ऑब्वियसली बेटा मैं इसको 1 मोल लूंगा. इसका मतलब मैं यहाँ पर मैं एक्चुअली 2 नहीं लगा सकता. ठीक है, 1 मोल ही रखना है. इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर में. एंड ऑब्वियसली टोटल ऑक्सीजन एटम यहाँ कितने हो गए, 2 × 2 4, 4 + 3 7, तो ये हो जाएगा 7/2. ओके, ये 1 मोल है. oops, this is carbon, my bad, this is carbon plus water, 2 कार्बन. चल, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी अब दिस टाइम, 3/2. 3 ऑक्सीजन है तो 3/2. ओके, सो 3/2 is basically 1.5. एक ही बात है, 1.5 लिख लीजिए. ठीक है, अब ये आपके पास है 1 मोल और ये आपके पास 1.5 मोल. सो अगर ये 1 मोल कह रहे हैं एग्जामिनर आपसे तो एग्जैक्टली 1.5 मोल ही मिलेगा ना आपको. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए. दैट्स एन इजी क्वेश्चन. व्हिच compound has the smallest difference in electron negativity between its 2 elements? आप सब जानते हैं कि across the period electron negativity value increase होती है. सही है. सो आप समझ लीजिए कि सबसे कम पोटेशियम की होगी, फिर उससे ज्यादा जो है वो लिथियम की होगी, एंड ऑब्वियसली इसी तरह से ब्रोमीन की कम होगी और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी. राइट. तो अब आप नोट करें, वो आपसे पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. राइट. तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस जो है ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करेगा ना, ये स्मॉलेस्ट डिफरेंस है. और मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज आपको दी हुई थी, अगर आपको याद हो
तो आप ये जजमेंट कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो LiBr कहीं लिखा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो LiBr इज द राइट आंसर, क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा, इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस ज्यादा होगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कम होगा। ओके, ऑलराइट, हमसे वो डिफरेंस स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। विस्पर थ्योरी, विस्पर थ्योरी को कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास अंडर द हेडिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड एंगल। फिर मैंने उस पर आपको शॉर्टकट लगवाया था जिसमें हमने सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर डिटरमिन किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ये डिसाइड किया था कि भाई देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपल्जन जो कि कोवलेंट मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करते हैं। बॉन्ड पेयर इज द वीकेस्ट वन, देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, एंड लोन पेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ओके, should be used to answer this question. Hydrazine has the following structure. We have done hydrazine in the class, so you guys should know about such stuff. What is the predicted bond angle of X? अब जो bond angle इस नाइट्रोजन का होगा वो इस नाइट्रोजन का होगा, because both the elements are same and exist in same chemical environment. यानी इसके साथ भी दो हाइड्रोजन, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन. Nitrogen is found in group 15 of the periodic table, which means it has 5 valence electrons, and those 5 valence electrons should take part in the covalent bonding. So मैंने जब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की तो पता चला 3 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, 1 लोन पेयर आ रहा है. So मैंने अभी कुछ अर्से पहले आपको बताया था कि we have 3 single bond and we have 1 lone pair. Whenever we have 3 single bond and a 1 lone pair, the total is going to be 4, and the hybridization is going to be sp3, right? If we have this sort of situation, obviously the angle is going to be 107 degree, and therefore B is going to be the right answer. Question number 7. This question is about Buckminster fullerene, graphite, iodine, and diamond. How many of these substances have a simple molecular structure? Examiner is talking about specifically simple molecular structure. So obviously graphite is going to be incorrect because ये giant होता है. Diamond is also incorrect because ये giant होता है. Obviously iodine is correct because वो simple covalent molecule होता है. Buckminster fullerene is also simple covalent molecule, and therefore I believe C is going to be the right answer. Another very simple question. Let's move on. Question number 8. Whew. Okay. A student reacts 1 mole of magnesium powder in a sealed 0.03 meter cube container of oxygen at a pressure of this Pascal and a temperature of 600 Kelvin. The magnesium reacts completely to form magnesium oxide. Which percentage of the oxygen will be used up? तो सबसे पहली तो बात ये कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, it will turn to magnesium oxide, and obviously we know the volume, we know the pressure, we know the temperature, we know the moles, so we know everything. So we can find the number of moles, right? Initially तो हमारे पास 1 mole of magnesium है, but we can find the moles of oxygen by using all these data, right? So let's find out. PV equals to nRT, N equals to PV upon RT. प्रेशर आपके पास दिया हुआ है पास्कल, तो हम उसको एज इट इज रखते हैं 2.0 into 10 to the power 5. वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब में, तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज प्लग इन कीजिए. दिस इज माय फर्स्ट स्टेप गाइस. R की वैल्यू फिक्स होती है 8.31 फॉर ऑल गैसेस, टेम्परेचर 600 केल्विन. सो N की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है मेरे पास? 1.203 मोल्स, राइट? अच्छा, अब इशू ये है कि भाई ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, ऐसा ही है. तो अगर तुम्हारे पास 1 मोल है मैग्नीशियम जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो बताओ ये कितना होगा? तो हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो बच जाएंगे वो 0.5 मोल है. ओके, और ये वो 0.5 मोल्स हैं जो कि फुली रिएक्ट करेंगे, fully react with magnesium, right? So next is
परसेंटेज ऑक्सीजन यूज्ड अब निकाल लेते हैं, जो कि एग्जामिनर की डिमांड है। कितना यूज हुआ 0.5, टोटल कितना था मेरे पास 1.203 टाइम्स 100। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, उस जगह नहीं है मेरे पास, चलो यहाँ कर देते हैं, यहाँ 100 की हो जाएगा 41.6%। तो 41.6% कहाँ पर है, सी में है, तो इसका मतलब सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, which equation represents an enthalpy change that is the average bond energy of the CH bond in methane? Average bond energy of the CH bond in methane. Average bond energy of the CH bond in methane. Average bond energy. Term pick करो. Average bond energy of the CH bond in methane. So option A is incorrect because आपने bond break नहीं किया, इनफैक्ट bond form कर रहे हैं आप, ठीक है। It is a bond forming process. Bond forming process है ये, इसलिए हमने इसको इनकरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये 1/4 मीथेन ले रहे हैं आप, इसके सारे कोवलेंट बॉन्ड्स टूट के ये एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी गैसियस एटम्स में। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड मस्ट बी एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, तो ये तो कंडीशन फॉलो हो गई। और दूसरी बात कि सीएच बॉन्ड की चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सीएच बॉन्ड टूट रहा है, जब भी तो वो कार्बन हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है, और ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं लिया है, इसने 1/4 ऑफ अ मॉलिक्यूल लिया था। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और लेट्स टॉक अबाउट सी एंड डी। ये मीथेन है, कन्वर्ट हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन में। बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हो, ब्रेकिंग ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि हमें सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। इसमें एक्चुअली सही है, तो ये भी गलत। इसमें क्या होगा, CH4 से कन्वर्ट हो रहा है, अब जाहिर सी बात है इसमें मीथेन है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक्यूरेट बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, जबकि वो हमसे एवरेज कह रहे हैं, इसलिए ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। Magnesium carbonate decomposes when heated in a Bunsen burner flame. Values for the standard enthalpy change of formation of the species involved are shown. What is the standard enthalpy change for the decomposition of magnesium carbonate? तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये हमें मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। फॉर्मेशन का डेटा हमें गिवन है, एज यू कैन सी, राइट। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे हेज़ेल साइकिल। वी नीड 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, मैग्नीशियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, एरो नीड्स टू बी अपवर्ड। जब भी फॉर्मेशन का डेटा होता है, एरो नीड्स टू बी अपवर्ड। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1095.8। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना दिया हुआ है, -601.7। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास दिया हुआ है -393.5। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो लीजिए, ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू प्लस, ये दोनों वैल्यू माइनस, इक्वल्स टू 0 करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सो लेट्स मेक द आंसर। ये हो जाएगा डेल्टा एच आर प्लस -1095.8, हो जाएगा -601.7 -393.5 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा एच आर की वैल्यू निकालूंगा, तो आई बिलीव डेल्टा एच आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +100.6 kilojoules per mole. So right answer is going to be an A. Let me check my double calculation. Wait. 1095.8 minus 1095.81.8 plus 601.7 plus 393.5, ये माइनस राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस, ठीक है। दैट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
ammonium nitrate decomposes into N2O and H2O on heating. Which statements are correct? Guys, ये मैंने नाइट्रोजन एंड सल्फर में आपको रिएक्शन करवाया है. अमोनियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है जिसका फॉर्मूला N2O है, और वाटर बनता है जिसका फॉर्मूला 2H2O. सही है. वो कह रहे हैं अमोनियम आयंस बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. मेक सेंस बिकॉज इस अमोनियम आयंस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैलकुलेट करके दी आपको क्लास में आपके रीडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में -3, जबकि यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके दी आपको +1. इसका मतलब -3 से +1 जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है. तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. तो इसका मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सही है. उसके बाद वो नेक्स्ट कह रहे हैं द नाइट्रेट आयंस इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रेट आयंस. नाइट्रेट आयंस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्लास में आपको कैलकुलेट करके दी है +5. over here the nitrogen की oxidation state in N2O is +1, so it's +5 to +1. that means reduction हो रही है. इस तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो रहे हैं. तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रेट के अंदर रिड्यूस हो रहा है. इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है. ओके. नेक्स्ट, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ऑब्वियसली यहाँ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये रिडॉक्स, ये भी ठीक है. इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ये गलत, बिकॉज एक एलिमेंट साइमल्टेनियसली 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. लेकिन अगर 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं और वो एक में कन्वर्ट हो रहा है तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होगा. इनफैक्ट ये ध्यान में रखिए कि अगर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाए फिर ये डिसप्रोपोर्शनेशन होगा, क्योंकि एक एलिमेंट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओनली 1, 2 and 3 is correct, and therefore B is going to be the right answer. Question number 12. A student adds 3 moles of acidified potassium dichromate 6 to an excess of iodide ions. Ouch. ठीक है. ओके. तो सबसे पहली तो बात ये कि आप डाइक्रोमेट 6 आयंस की इक्वेशन लिखें आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स के थ्रू. सिंस डेटा बुकलेट इज नॉट गिवन, सो आपको ये लिखनी आनी चाहिए और मैंने क्लास में डिस्कस की है. Cr2O7 है, ये कन्वर्ट होगा क्रोमियम 3+ आयंस में. वी हैव 2 क्रोमियम, तो यहाँ 2 लगाइए. यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल यूज कीजिए. 14 हाइड्रोजन एटम्स हो गए. उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 14 हाइड्रोजन आयंस. गाइस, वी हैव हाउ मच चार्ज? वी हैव 6+ चार्ज हियर, and over here we have 14+ and 2 minus becomes 12+. so इस 12+ को 6+ में convert करने के लिए I will use 6 electrons here. so this is the half cell equation for dichromate 6 ions. iodide ions को भी देख लेते हैं. oh my goodness, iodide ions ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होंगे आयोडीन में और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. वी हैव 2 आयोडीन हियर, सो इसका मतलब मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ और मैं यहाँ पर भी 2 लगाता हूँ. ओके. So we have how many electrons here? 6. We have how many electrons here? 2. So what we can do is कि हम इस equation को 3 से multiply कर लेते हैं. The number of electrons balance over cancel होंगे. So are we getting the final equation from here? Yes, we are getting the final equation from here. तो final equation क्या होगी? Final equation है Cr2O7 negative plus 14 hydrogen ions. I think I have done this. I think I have done this. 6 iodide ions, arrow 3I2 plus 2 chromium 3 plus 7 H2O. Okay, that's our final equation. अब मसला ये है कि according to the equation ये 1 mole है, and according to the equation ये 6 moles है. सही है. Oh my goodness, you need to use 3 moles. तो अगर ये 3 moles होंगे तो बताइए ये कितने होंगे? Let's check. Oops, how come? Oh, guys. Wait.
आयोडीन कह रहा है गाइस, आयोडीन 3 मोल्स होंगे। तो अगर ये 3 मोल्स है तो बताओ ये कितने होंगे? तो 9 मोल्स ऑफ आयोडीन हो जाएंगे। ठीक है, वो आयोडीन कह रहा है, I2। अच्छा, अब जरा देखिएगा, आयोडीन जो है वो थायोसल्फेट आयन से रिएक्शन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है टेट्राथायोनेट में, जिसका फॉर्मूला है S4O62- एंड आयोडाइड आयंस। Guys, we have done these equations in group 17, okay? So ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। आपने कितने मोल्स निकाले हैं यहाँ से? 9 मोल्स। बताइए ये कितना होगा? तो भाई ये 18 मोल्स हो जाएगा थायोसल्फेट। 18 moles of S2O3, 2 negative. So let's read the question. The iodine release is reduced back to iodide ions with X moles of this. 1 mole of iodine is reduces by 2 moles of this. What is the value of X? The value of X तो ये आ गई 18. The right answer is going to be D. Okay. The 2 moles of thiosulfate 1 mole of iodine से रिएक्शन कर रहा है, तो अगर 9 moles of iodine आपने फर्स्ट इक्वेशन से डिटरमिन किए तो moles of thiosulfate कितने हो जाएंगे आपके पास? 18 हो जाएंगे आई बिलीव। So right answer is this. 1 mole of iodine is reduced by 2 mole of, तो अगर इतने moles of iodine है तो thiosulfate 18। Yeah, that's the logical answer. इसके अलावा मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा। आई होप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which statement about acid and bases always correct? उसने कहा always, ठीक है। So one by one ऑप्शन रीड करते हैं। An acid with 2 hydrogen atoms per molecule, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते, इसका मतलब ऑप्शन रॉन्ग। Next, a concentrated solution of a strong acid will have a lower pH than a dilute solution of a weak acid. Weak acid की तो pH हायर होती है, लोअर होती ही नहीं है, ठीक है। तो a concentrated solution of a strong acid will have a lower pH। वैसे इतना पार्ट तो सही है, ये बात तो सही है बिल्कुल। Then a dilute solution of a weak acid, और weak acid की तो pH वैसे ही ज्यादा होती है बेटा, तो जाहिर सी बात है ये बात भी सही है। तो A, B is going to be the right answer. Let's see. C भी पढ़ लो। A concentrated solution of a strong base will have a lower pH value. Wrong. Higher pH value होती है। A strong acid is more dissociated in solution than a strong base. No, strong acid और strong base दोनों fully dissociate होते हैं, इसलिए ये भी गलत। Question number 14. The reaction between sulfur dioxide and oxygen is reversible. Right. Kc की value is given in an equilibrium mixture of 1000 Kelvin. Sulfur dioxide concentration is 6 mole per dm³. The sulfur dioxide concentration is twice the oxygen concentration. That's a very, very powerful statement. ठीक है। Next, what is the sulfur dioxide concentration? Okay, no issue. And Kc की value, guys, is given. Okay. एक काम कर लेते हैं, Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहाँ। Kc equals to concentration of sulfur trioxide पावर स्क्वायर, क्योंकि जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड स्क्वायर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। Kc की वैल्यू मुझे गिवन है 280। सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इज गिवन व्हिच इज 6 मोल पर dm³, तो 6.00 इसका स्क्वायर कर लेंगे ओवर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इज ट्वाइस देन, या हो जाएगा x/2। सही है, ऑलराइट। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको, ये हो जाएगा 280 इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब ओवर 2। ओके, तो अगर मैं यहाँ से एक्स क्यूब निकाल लूं तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 280।
तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं क्यूब रूट के थ्रू, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 140। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.636 मोल पर dm क्यूब। So right answer is going to be D. All right. Question number 15. The Boltzmann distribution of particles in a mixture of gas X and gas Y is shown in diagram 1. X and Y reacts and the reaction causes an increase in the gas molecules present. The reaction goes to completion. Okay. In experiment 1, the increase in volume is measured every 10 seconds. During the reaction, the temperature and pressure remains constant. The increase in volume is shown in the volume time graph in diagram 2. Okay. All right. In experiment 2, the experiment repeated using identical amount of X and Y. A different temperature is used compared to experiment 1. The same pressure is used. The Boltzmann distribution of the second mixture of X and Y is shown in diagram 3. इसका मतलब temperature lower use हुआ experiment 2 में. During the reaction, the temperature and pressure remains constant. That's crazy. Which curve on the volume time graph would show the increase in volume against time for experiment 2? The original line for experiment 1 is red drawn as a solid line. Okay. अच्छा जनाब, आप सब जानते हैं कि ए का उप्स कर्व बहुत ही ज्यादा स्टीपर है. ओके. सिमिलरली बी का भी कर्व बहुत स्टीपर है. सही. तो ऑब्वियसली ए और बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई है, जबकि ये ग्राफ शो कर रहा है कि टेम्परेचर कम है. लोअर टेम्परेचर इज यूज्ड. अब जाहिर सी बात है, जब लोअर टेम्परेचर आप यूज करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये भी कम होंगे. लेसर नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. सही है भाई. अच्छा, अब लेसर नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऑब्वियसली उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एंड देयरफॉर लेसर कोलिजन होंगे. और जब लेसर कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसमें भी कम है और इसमें भी कम है. ठीक है. अब अगर लेसर कोलिजन है, अच्छा, वो कह रहे हैं एक और पॉइंट ये कह रहा है कि रिएक्शन कंप्लीशन हो गया है. जब लेसर नंबर ऑफ कोलिजन होंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन नेवर गोस फॉर कंप्लीशन. रिएक्शन डू नॉट go for completion. Okay, I hope it makes sense to you. Next, when the temperature of the particular reaction is increased by 10 degrees Celsius, the rate of reaction approximately doubles. What is the most significant reason for this reaction? चले वन बाय वन पढ़ते हैं. A different mechanism for the reaction. नहीं, ये तो catalyst की वजह से होता है. ठीक है ना. Only catalyst can do that. Option is incorrect. An increased collision frequency of the reactant molecule. बात तो सही है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, लेकिन फिर उसकी वजह से क्या होता है ये नहीं लिखा हुआ.
तो सी पढ़ते हैं, मोर collisions have energy greater than the activation energy, that is the complete statement. Okay, so C is going to be the right answer. B ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट उसने नहीं दिया. ऑलराइट, नेक्स्ट, reduced activation energy for the reaction. Only catalyst can do that. Only catalyst can do that. Can do that. और ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है. So question was 17. Which ion has the smallest radius? Guys, smallest radius. याद करो, the size of cation is always smaller. सही है. और मैंने आप लोगों को एक बात और बताई है कि as the magnitude of positive charge increases, proton to electron attraction increases, size of the cation decreases. That's what we have done in the class. Okay, so obviously B तो इनकरेक्ट क्योंकि वो ग्रुप के अंदर आता है, पीरियड में नहीं आता. सही है. अब इसके ऊपर है +1 चार्ज, इसके ऊपर है 2+ चार्ज, इसके ऊपर है 3+ चार्ज. तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो +1 से +2 हुआ, +2 से +3 हुआ. इसका मतलब एल्यूमिनियम हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस बिकॉज़ उसमें प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी. इनफैक्ट एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे. मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे. सोडियम के अंदर जो है वो 11 protons 10 को attract करेंगे. And guys, you can check my atomic structure chapter. I've done this explanation with you in that particular lecture. Okay, वहाँ ये हमने किया हुआ है. Which row is correct? Element with the greater fifth ionization energy. Fifth ionization energy. Okay. 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 I got it. I got it. Fifth ionization energy makes sense. Okay. Fifth ionization energy को focus करना है. एलिमेंट विद एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. आप सब जानते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का होता है. तो या तो ए आंसर है या बी, सॉरी ए आंसर है या सी. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. व्हाई नॉट ए एंड बी? तो इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 13 का एलिमेंट है. राइट, एलिमेंट जो है वो ग्रुप 13 का है. तो जो बिगेस्ट एनर्जी चेंज होगा वो थर्ड और फोर्थ के दरमियान होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ के दरमियान नहीं होगा. तो जो ग्रेटेस्ट एनर्जी चेंज एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब वो फर्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल एंड देयरफॉर एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 15. और ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है वो फास्फोरस होता है, व्हिच इज व्हाई फास्फोरस कुड बी द राइट आंसर इन दिस सिनेरियो. ओके, आई रिपीट अगेन. वो कह रहे हैं ग्रेटर फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी. इसका मतलब जो बिगेस्ट एनर्जी गैप एग्जिस्ट कर रहा है वो बिटवीन 15th and 16th कर रहा है. राइट, बिटवीन 5th and 6th कर रहा है. इसका मतलब फर्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वैलेंस शेल. दैट मींस कि एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 15 बिकॉज़ दे कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. तो ग्रुप 15 में एल्यूमिनियम तो नहीं आता, फास्फोरस आता है. एंड एम्फोटेरिक सिर्फ एल्यूमिनियम बनाता है, व्हिच इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. Each of the chlorides listed is added to water. Aluminum chloride. Okay. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Which chloride forms an aqueous solution that reacts with sodium carbonate to produce carbon dioxide? Reacting with sodium carbonate, giving carbon dioxide. इसका मतलब this aqueous solution needs to be acidic. कोई भी एसिडिक सोल्यूशन अगर होगा तो ऑब्वियसली वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा.
मुझे और आपको मिलकर ये डिसाइड करना है कि इनमें से एसिडिक सोल्यूशन कौन सा देता है। अगर आपको लेक्चर याद है, जो कि मुझे लगता है याद होना चाहिए एट दिस पॉइंट, तो आप जानते हैं कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनाता है और यहाँ से HCl बनता है, और इस HCl का एसिडिक सोल्यूशन होता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये बेसिकली ऑलमोस्ट न्यूट्रल सोल्यूशन देगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये गलत। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर इट विल टर्न टू व्हाइट सॉलिड और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स विद 4HCl, तो ये भी आपको एसिडिक सोल्यूशन दे रहा है, यानी ये भी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया था, 4 2 8 5, ओके, 4H2O, अगर आपको याद हो ये सारी इक्वेशंस भी आपके रजिस्टर में है, तो ये कन्वर्ट होता है H3O दैट इज फास्फोरिक एसिड एंड 5HCl, तो ये भी एसिडिक सोल्यूशन दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये भी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके, तो 4, तो C is going to be the right answer. Okay, I hope आपको क्वेश्चन 18 क्लिक हुआ हो। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि देखें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम बनाता है, या तो आंसर ए है या फिर आंसर सी है। अच्छा, अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं ग्रेटर फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी है, इसका मतलब जो शेल चेंज हो रहा है वो बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो रहा है। इसका मतलब those first 5 electrons are removed from the valence shell, which means element belongs to group 15, and so group 15 का phosphorus होगा, aluminum found in group 13, इसलिए ये दोनों wrong होंगे। Okay, I hope you get the point. Question number 20. Sodium hydroxide is added to separate sample of magnesium chloride, okay, and barium chloride solution. अगर मैग्नीशियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, so it will turn to magnesium hydroxide के precipitate, और बेरियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के precipitate, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसका कलरलेस सॉल्यूशन होगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स होंगे व्हाइट पीपीटी। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। H2SO4 is then added slowly to each solution reaction mixture until it is in excess। भाई जब मैं इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम सल्फेट में, ओके, एंड वाटर में। सिमिलरली जब मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो इट विल टर्न टू बेरियम सल्फेट एंड वाटर। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, आप जानते हैं ये सॉल्युबल होगा और आप जानते हैं ये इनसॉल्युबल होगा, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे आपको। ओके, सो वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस, एंड ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस। सो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो इनिशियली तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेगा, लेकिन फिर कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस सॉल्यूशन से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Question 21. A 4-gram sample of an anhydrous group 2 metal nitrate is heated strongly until there is no further change of mass. A solid residue of mass 1.37 gram is formed. Which metal is present in Z? Guys, इसको हमने नाम दिया था ट्रायल एंड एरर मेथड का। हमने इसको क्या नाम दिया था, ट्रायल एंड एरर मेथड का। So right answer is going to be B. कैल्शियम नाइट्रेट है आपके पास, तो कैल्शियम नाइट्रेट का एमआर जो होता है वो 164 होता है। कैल्शियम नाइट्रेट का जो एमआर, ये ट्रायल एंड एरर है, मैं जो वर्किंग कैल्शियम के लिए करूंगा एग्जैक्ट वही वर्किंग बेरियम के लिए भी होगी, ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगी। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट का एमआर, वेट लेट मी फाइंड आउट, वेट, कैल्शियम नाइट्रेट एमआर, कैल्शियम नाइट्रेट
164. Yeah, I was right. 164. Okay, 164. So first of all, moles of calcium nitrate निकालो. ये हो जाएगा 4.00 डिवाइडेड बाय 164. तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे और मोल्स हैं 4 डिवाइडेड बाय 164. 4 डिवाइडेड बाय 164 is going to be 0.02439 मोल्स. ठीक है. हम सब जानते हैं कि अगर मैं कैल्शियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करता हूं तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 2:2 का रेशियो है. अगर 0.02439 लिए हैं तो सेम मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएंगे. दैट इज 0.02439. हम सब जानते हैं कि हमें मास कैलकुलेट करना है कैल्शियम ऑक्साइड का, क्योंकि रेजिड्यू तो कैल्शियम ऑक्साइड का ही होगा. ये हो जाएगा 0.02439 मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम ऑक्साइड का एमआर और 40.1 प्लस 16 is going to be 56.1. इसको मल्टीप्लाई कर दो 56.1 से. तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 0.02439 is going to be 1.36. 1.368 ग्राम. तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 1.37 ग्राम लिख लूं. ये एग्जैक्टली वही मास है जो मुझे यहाँ एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया. ठीक है, which is why B is going to be the right answer. मैंने एग्जैक्टली यही वर्किंग बेरियम के लिए भी की थी. सबसे पहले बेरियम के लिए काम किया. आंसर ये वाला मुझे नहीं मिला, इससे टैली नहीं हुआ, इसलिए बेरियम गलत. कैल्शियम इज द राइट आंसर. इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. माय गुडनेस. Chlorine is bubbled through a cylinder containing aqueous sodium iodide. तो क्लोरीन being a strong oxidizing agent, सोडियम आयोडाइड में से आयोडीन को आयोडाइड आयन को डिस्प्लेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन और खुद कन्वर्ट हो जाएगा टू NaCl. ओके, एंड एन इमिसिबल लेयर ऑफ हेक्सेन. याद रखिएगा कि हेक्सेन जो है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है. ओके, तो ये हेक्सेन की लेयर है और ये एक्वस सोडियम आयोडाइड है. तो जब आप बबल करेंगे यहाँ से तो रिएक्शन होगा, आयोडीन बनेगा. तो जब आयोडीन बनेगा तो फिर क्या होगा? एज द बबल्स पास थ्रू द सिलेंडर व्हाट इज ऑब्जर्व इन द लोअर एंड अपर लेयर. अच्छा, क्योंकि ये एक्वस लेयर है, ये विद वाटर है, इसका मतलब जो तुम्हें आयोडीन का कलर नजर आएगा वो ब्राउन होगा, क्योंकि एक्वस मीडियम में ब्राउन सोल्यूशन होता है आयोडीन का. तो कलर सोल्यूशन बिकम्स ब्राउन, ये लिखा हुआ. अच्छा, हेक्सेन में आप जानते हैं कि हेक्सेन नॉन पोलर है. अब जाहिर सी बात है आयोडीन भी क्या है आपके पास? नॉन पोलर. और ये भी क्या है आपके पास? नॉन पोलर. एंड अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल, नॉन पोलर आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर. तो इसका मतलब हेक्सेन के अंदर आयोडीन डिसॉल्व होगा बिकॉज ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल. क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे में, जिसकी वजह से हेक्सेन का कलर पहले कलरलेस था, आयोडीन के डिसॉल्व होने की वजह से कलर्ड हो जाएगा. तो कलर्ड यहाँ पर भी है, कलर्ड यहाँ पर भी है, therefore A is going to be the right answer. That's very important aspect of chem कि ये आयोडीन जो है वो नॉन पोलर है, हेक्सेन जो है वो भी नॉन पोलर है, according to like dissolves like principle which we have discussed in the class in such a detail, जो कि आपके रजिस्टर में है. आप जानते हैं ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे. तो अगर हेक्सेन इनिशियली कलरलेस था, आयोडीन डिसॉल्व होगा तो उसका एक कलर आ जाएगा आपके पास. ठीक है, एंड यूजुअली मैं बता देता हूँ, whenever iodine is dissolved in hexane it will show
और it will give you a pink color. All right, ये मैंने आपको बता दिया कि पिंक आता है. एक्वस मीडियम में ब्राउन होता है. हेक्सेन की लेयर जब भी यूज होगी आयोडीन उसमें पिंक कलर शो करेगा. All right. Anyhow, question number 23. Chlorine and bromine have different volatilities. Which row identifies the more volatile of the two elements and give the correct explanation? Down the group, number of electrons increase होते हैं. तो जाहिर सी बात है strength of van der Waals forces increase होती हैं. तो आप सब जानते हैं कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और क्लोरीन जो है वो गैस है. तो ऑब्वियसली मोर वोलेटिलिटी जो है वो क्लोरीन की होगी. तो सी आंसर है या फिर डी? अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन ब्रोमीन देन दे आर इन क्लोरीन. ये बात बिल्कुल सही है. दिस इज राइट बिकॉज ब्रोमीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज्यादा होंगे. राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट देखते हैं. इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन क्लोरीन. नॉट एट ऑल बिकॉज क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, strength of van der Waals forces कम. ब्रोमीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, strength of van der Waals forces ज्यादा. Hence C is going to be the right answer. Okay. Question number 24. Ammonium chloride dissolves readily in water. Which statement about the colorless solution formed is correct? Ions in the solution can form hydrogen bonds with water molecule. Yes, that's right. That's right. Wait. आगे पढ़ लेते हैं. The solution is slightly basic. No. Ammonium ions are conjugate acid, strong conjugate acid. तो अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन हमेशा एसिडिक होता है, बेसिक नहीं होता. इसका मतलब बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. ठीक है. द सोल्यूशन वुड स्मेल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन की स्मेल क्यों नजर आएगी? क्लोरीन थोड़ी बन रहा है, तो डिसॉल्व हो रहा है, रिएक्शन थोड़ी कर रहा है. सी भी गलत. ओके. नेक्स्ट. When sodium hydroxide is added, a gas is formed which turns damp blue litmus paper red. That's incorrect. जब आप किसी भी अमोनियम सॉल्ट को एक एल्कली से रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होती है. Since it is an alkaline gas, which is why it damps red litmus paper blue. तो ये टेस्ट गलत लिखा हुआ है, which is why ये भी गलत, and therefore A is going to be the right answer. Okay. Okay, next question number 25. At 550 degrees Celsius, nitrogen dioxide reacts with unburnt hydrocarbon fragments such as CH3 in the catalytic converter of a motor vehicle. Okay. Which row gives the energy change for this reaction and a possible reason for it? आप जानते हैं, आप जानते हैं strong bonds form हो रहे हैं. So whenever strong bonds are formed, reaction is always exothermal. So option A और option B गलत, C या D में से कोई एक option ठीक होगा. सही. Next. Carbon dioxide and water have negative delta HF values. बिल्कुल सही बात है. That's right. Because delta HF of carbon dioxide मैंने आपको क्लास में लिखवाई है -396 kilojoules per mole, and delta HF of water मैंने क्लास में आपको लिखवाई है -26 kilojoules per mole. That was the data I've given in the class. So yeah, C is going to be the right answer. Let's talk about D. Double bonds are broken in NO2 molecule. NO2 molecule में double bonds नहीं होते. NO2 molecule में single bond भी होता है, dative bond भी होता है. Okay, इसलिए D भी गलत है. Question number 26. Compound X contain an alcohol group and a carbonyl group. Which row is correct? भाई ये जो आपके पास अल्कोहल ग्रुप है ये टर्शरी है, 3 डिग्री अल्कोहल है. ओके. तो टर्शरी अल्कोहल हो गया ये. 3 डिग्री अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं. तो इसका मतलब या तो सी आंसर है या डी. इसका मतलब ये और भी गलत हो गया. अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो आपके पास ग्रुप है CO, ये बेसिकली कीटोन है, राइट. तो कीटोन यहाँ भी है, कीटोन यहाँ भी है, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Question 27. The diagram shows the skeletal formula of phenazine.
व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ionizing? लाइक कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन एटम्स हैं, सही। नाइट्रोजन काउंट कर लो, 1 2 है। अच्छा, अब हमें काउंट करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सही है। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा C6H4n। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। कहाँ लिखा है? C6H4n, ए में लिखा है। ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, और याद रखिएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो of atoms or ions. Okay, the diagram shows the structural formula of malonic acid. Which reagent in conditions will react with malonic acid to produce an organic compound without a chiral carbon atom? That's a very important task. Without a chiral carbon atom. अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मिथनॉल से रिएक्शन कराता हूँ। तो ये दोनों अल्कोहल हैं, इस अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेंगे, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिएक्शन करेगा, एस्टर बनाएगा। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ बेटा, जगह कम है तो स्केलेटल मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। तो ये हो जाएगा सी, उप्स, ये हो जाएगा CO, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ये CH3 आ गया। CO के बाद क्या है? CH2, CH2 के बाद क्या है? CHOH, और फिर क्या है आपके पास? CH3, फिर क्या है आपके पास? CH2 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 एंड देन OH, सही है। तो कायरल हुआ ये तो कायरल हो गया, क्योंकि ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा, और ये पूरा का पूरा चौथा। तो ये तो गलत हो गई, ऑप्शन ए तो गलत हो गया, सही। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूँ तो जाहिर सी बात है ये टर्शियल अल्कोहल है, इट नेवर गोना ऑक्सीडाइज। लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि हीट अंडर रिफ्लक्स लगाया हुआ है हमने। तो अगर हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CH2 एज इट इज, ये COH एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, और ये COOH एज इट इज। अब देखो, ये CH2COOH है और ये CH2COOH, ये दोनों सेम ग्रुप हो गए एक ही कार्बन एटम के साथ। इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है। तो दिस माइट बी द राइट आंसर, ठीक है। और यही आंसर है इनफैक्ट, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। याद रखना कि ये जो तुम्हारे पास CH2OH है, इसको मैंने इस COOH में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप and this group is same, the no chiral, same group, no chiral, same group, no chiral carbon. 29, structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. Okay. Whew. Okay, Y is a gaseous hydrocarbon which decolorizes aqueous bromine. इसका मतलब Y के अंदर between the carbon atom double bond है, alkene functional group है. Okay, 10 gram of Y, okay, occupies a volume of 3.43 dm cube under room condition. How many isomeric structures are possible of Y? Oh my goodness, oh my goodness, that's a next level question. We know the mass, we know the volume. What is the structure of Y? First of all, we need to find out what is the molecular formula of Y. Oh God. ऐसा तो ना करें, इतना मुश्किल दे दिया आपने, जगह इतनी कम है। चलें कोई बात नहीं, मोल्स सबसे पहले निकालते हैं। 3.43 दिए हुए मुझे, उसको डिवाइड कर दीजिए आप 24,000 cm क्यूब से, क्योंकि रूम कंडीशन है। तो
1.43 divided by 24,000 cm cube is going to be 1.42429 into 10 to the power -4 moles. अब मुझे मोल्स पता चल गया भाई के, मुझे मास पता है, तो मैं mr कैलकुलेट कर लेता हूँ. मास है 10.0, मोल्स है मेरे पास 1.429 into 10 to the power -4. तो यहाँ से 10 divided by answer. Oops, what did I wrong? What did I do? oops. कुछ गलत कर रहा हूँ. ओह गाइस, माय बैड. बीएम क्यूब है, मैंने 24,000 से कर दिया. ओके, माय बैड, सॉरी अबाउट दैट. चलो दोबारा से 3.43 डिवाइडेड बाय 24, 0.1429 makes sense. 0.1429 0.1429. So 10 divided by answer is going to be 69.97. इसके मतलब मैं राउंड ऑफ करके इसको 70 कर सकता हूँ. अब जाहिर सी बात है ये एक एल्कीन है, तो एल्कीन जो है उसका 70 आया है. एक मिनट में इधर वर्किंग करके देखूं. CnH2n equals to Mr12n plus 2n equals to Mr. ये हो जाएगा 14n equals to Mr. then n equals to Mr over 14. Mr मैंने कितना निकाल लिया 70 divided by 14, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी. तो 70 divided by 14 is going to be 5. तो n की वैल्यू is 5. मैं फॉर्मूले में रखता हूँ. Guys, that was my first step, that was my second step, that is my third step, and that is going to be my fourth step. अब मैं CnH2n में 5 कार्बन एटम्स रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 into 5, तो ये हो जाएगा C5H10, and that's my compound Y. सही है. तो जनाब अब ये जो C5H10 है ना, इससे रिलेटेड मैंने स्ट्रक्चरल और स्टीरियोआइसोमेरिज्म देखने, और मैंने देखने के लिए स्ट्रक्चरल भी देखना है और स्टीरियोआइसोमेरिज्म भी देखना है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. यानी पहले कैलकुलेशन, फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला अगर आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा. दैट्स क्रेजी एक्चुअली. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 हमारा फर्स्ट हो गया. हम सेकंड बना लेते हैं, एंड ऑब्वियसली 5 कार्बन एटम है तो चेन आइसोमेरिज्म कर लेते हैं. CH3 CH CH3 CH 1 2 3 4 डबल बॉन्ड CH2. इस ब्रांच को उठाकर हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये थर्ड आ जाएगा. CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2. सही है. तो ये तो चेन आइसोमर हो गए. इस चेन आइसोमेरिज्म में ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और ना ही ऑप्टिकल. ये ऑप्टिकल नहीं है क्योंकि दोनों की दोनों CH3 है. ठीक है. ऑलराइट, ये चेन हो गया. अब हम चलते हैं पोजीशन पे. फोर्थ पोजीशन में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देते हैं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. ठीक है. अब इससे तुम्हें सिस भी मिलेगा, इससे तुम्हें ट्रांस भी मिलेगा. तो फोर्थ जो है वो सिस हो गया और फिफ्थ जो है वो तुम्हारा ट्रांस हो गया. छठा देखो, ये CH3 उठाते हैं, इस कार्बन पे ले जाओ, ये वाला हाइड्रोजन इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C. ये CH3 आ गया और ये CH2 हाइड्रोजन हासिल करके CH3.
इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, राइट, इसमें ज्योमेट्रिकल था। और ये ब्रोमीन से ही रिएक्शन करना चाहिए, ये सब ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे, डीक्लोराइज करेंगे। मैं फंक्शनल आइसोमर नहीं बना सकता इसका, सही है, क्योंकि वो फिर एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, इसमें कायरल सेंटर भी नहीं है, तो 6 आइसोमर्स पॉसिबल है, तो 6 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। टफ क्वेश्चन था गाइस। 30, limonene is found in lemon and orange oils. What is the major product when limonene reacts with an excess of dry hydrogen chloride? अच्छा, पहली तो बात ये कि जो लिमोनिन है वो आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड है ये आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, राइट। इसका मतलब दिस फॉलोज मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल, सही है। और मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? पॉजिटिव पार्ट ऑफ unsymmetrical reagent goes to that double bonded hydrogen atoms where we have more hydrogen. सही है, तो मोर हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर भी है, मोर हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो रेड वाले डॉट्स हैं वहां जाकर ऐड होगा। सो अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ से बनाऊं एडिशन के बाद, पहले तो मैं ये लिख दूं, तो मैं यहाँ पर क्या ऐड करूंगा H, और यहाँ पर क्या ऐड करूंगा Br। ये हो गया आपका Br और ये हो गया आपका H। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या ऐड करूंगा H, ये मैंने ऐड कर दिया H ऐड कर दिया, ये देखो, और यहाँ क्या ऐड करूंगा मैं Br। अब ये देखो ये स्ट्रक्चर कहाँ लिखा हुआ है, शूट यार, माय बैड अगेन, व्हाट आई एम डूइंग। HBr नहीं है, क्लोरीन है, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं आएगा। अब चेक करो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई बिलीव C में, तो C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और मार्कोनिकोफ रूल में जाहिर बात है आप कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को भी देख रहे होते हैं, राइट, उसके थ्रू भी करते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट याद करवाया हुआ है आपको, तो मैंने उसके थ्रू बता दिया कि क्वेश्चन जरा जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर हम कार्बोकैटाइन के थ्रू जाएंगे तो हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा बन रहा है, यहाँ कौन सा बन रहा है, यहाँ कौन सा बन रहा है, यहाँ कौन सा बन रहा है। इट विल टेक टाइम फॉर MCQ, तो मैंने ये शॉर्टकट लगा दिया, क्योंकि ये शॉर्टकट हमने स्टेटमेंट पूरा मार्कोनिकोफ रूल पढ़ाया हुआ है आपको, तो हमने उसका जो स्टेटमेंट ना वो अप्लाई करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, which statement concerning hydrolysis of 1 bromopropane with water is correct? Okay. The hydrolysis reaction between water and 1 iodopropane is faster. ये बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीकर होता है, बॉन्ड आसानी से टूटता है, रिएक्शन फास्टर होगा। बिकॉज द CBr बॉन्ड इज लेस पोलर देन Ci। नहीं, CBr बॉन्ड इज मोर पोलर, लेस पोलर नहीं होता, मोर पोलर होता है। CBr bond is more polar. Okay. Next is hydrolysis reaction with water is very slow because water is a weak electrophile. Water is a nucleophile. Water is a nucleophile. ये भी गलत। Next, the mechanism of the reaction involves the formation of a stable carbocation. Since it is primarily alkyl, so it always undergoes through SN2 reaction
टर्शी में SN1 होता है, और जब SN1 होता है तो प्राइमरी स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं, इसका मतलब ये भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी स्टेबल कार्बोकैटायन, नॉट पॉसिबल इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, नॉट पॉसिबल इन SN2 रिएक्शन। आप बताइए कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। Okay, and 1 degree alkyl halide always undergoes SN2 reaction. तो SN2 में प्राइमरी स्टेबल कार्बोकैटायंस नहीं बनते। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। माय गुडनेस, compound J is reacted with an excess of hot concentrated solution of sodium hydroxide in ethanol. One of the product is X. That's called elimination. That is elimination reaction. So alkyl halide में जब भी elimination होती है, alkene is formed. Okay. वेरी गुड। अब जरा देखिए, एलिमिनेशन जब यहाँ से होगी तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो देखेंगे आ गया। सही है। अगर एलिमिनेशन में यहाँ से करा दूं तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आ गया। सिमिलरली अगर मैं बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा दूं तो बॉन्ड ये बन जाएगा। बाकी ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एज इट इज, इस कार्बन के साथ ये दो ग्रुप है एज इट इज। ओके, एंड देयरफॉर A is going to be the right answer, बिकॉज ये जो X है ये एल्कीन है आपका। अल्काइल हैलाइड से जब भी एलिमिनेशन होता है एल्कीन बनती है, राइट। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो कार्बन अटैच होती है वो बीटा कार्बन। तो एलिमिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एटम। तो ये HBr निकल जाएगा, इसलिए बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये H और ये Cl निकल जाएगा, इसलिए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये H और ये Br निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास 7, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 33। Why examiner, why there are so many isomerism के question? Seems like उनके examiner's favorite है। Oh my goodness. Structural isomerism only should be considered when answering this question. Several compounds with molecular formula C4H8O2 have one carbonyl group and one hydroxy group. Oh bhai, such a powerful statement. और ये फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान में रखो। वो कह रहे हैं how many of these compounds produce yellow crystals with alkaline aquacidine at room temperature? Guys, alkaline aquacidine का रिएक्शन उस वक्त पॉजिटिव आता है जब आपके पास कंपाउंड में CH3 CO ग्रुप हो या फिर CH3 CH OH ग्रुप हो, राइट। तो याद रखिएगा कि कंपाउंड इस तरह का बनाने है कि एक कार्बोनिल और एक OH हो। चले बनाते हैं। तो आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव लाना है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया और आइडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट आ गया। कार्बन एटम कितने हैं? 4 CH2 CH2OH। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 3 + 2 5, 5 + 2 7 + 1 8। हाइड्रोजन सेटिस्फाई, 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाई, 1 2 3 4 कार्बन सेटिस्फाई। ये मेरा पहला स्ट्रक्चर हो गया, राइट। दूसरा CH3 CHOH, याडोफॉर्म को पॉजिटिव टेस्ट आ गया और एक OH ग्रुप भी हो गया। अब कार्बोनाइल ग्रुप लाना है, तो CH2 CHO।
राइट, 1 2 3 4 कार्बन एटम, 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये भी सही है। इसमें ये हाइड्रोफॉर्म को पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये कार्बोनाइल है। इसमें से ये हाइड्रोफॉर्म को पॉजिटिव टेस्ट देगा, और ये कार्बोनाइल है, ये अल्कोहल है। तो एक कार्बोनाइल, एक OH, एक OH और एक कार्बोनाइल, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी है? अच्छा चलो देखो, एक और भी पॉसिबिलिटी बना सकता हूं मैं। कैसे? ये CH3CO एज इट इज रखा, सही है, ये एज इट इज रखा। अब हम क्या करेंगे, ये जो CH है इसके साथ OH लगाओ, व्हाट्स लेफ्ट नाउ। अब यहां से काम करो, तुम्हारे पास क्या रह गया? OH तुमने लगा दिया, तुम्हारे पास CH2 और H रह गया, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? CH3, ये तुमने यहाँ बना दिया। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये CH2 और ये H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? CH3। वो CH3 तुमने ये लगाया, और इस विनाइल एक OH, ये भी हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है और ये भी हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। तो देयर आर 3 कंपाउंड्स, ओके। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है 4, और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें। ऑलराइट, question number 34, pentaerythritol is used as an intermediate in the manufacture of paint, which statement is correct. Okay, pentaerythritol can be dehydrated by concentrated sulfuric acid to form an alkene. I did this in class, I did this example in class। और तुम जानते हो कि अगर मैं यहाँ से OH हटा दूं, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, shifting of bond, removal of hydrogen cannot take place from this carbon atom because this carbon has no hydrogen। इसका मतलब first option is incorrect। Next, empirical formula and molecular formula of pentaerythritol are different, might be different। 1 2 3 4 5 भाई 5 कार्बन एटम्स हैं, इसका मतलब जो एम्पेरिकल होगा वही मॉलिक्यूलर होगा, सेम होगा, क्योंकि मैं 5 कार्बन एटम्स को हाफ नहीं कर सकता हूँ। डिफरेंट कह रहा है, इट मस्ट बी सेम। ओके, तो ये भी गलत। pentaerythritol does not react with acidified potassium magnate 7। they do, ये सारे प्राइमरी अल्कोहल हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल पोटेशियम मैग्नेट 6 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ओके, डू नॉट, वो कह रहा है डू नॉट, दे डू रिएक्ट। क्या हो गया, क्या हो गया? डू रिएक्ट, क्योंकि ये सब क्या है? प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स तो रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, which reaction has a nucleophilic addition mechanism and give a good yield of product under the stated condition? पहली बात, nucleophilic addition reaction takes place in aldehyde and ketone। aldehyde and ketone में होते हैं nucleophilic addition reaction। so इसका मतलब ये हुआ कि A और B दोनों wrong, क्योंकि ये तो अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स में तो नहीं होती nucleophilic addition reaction। तो प्रोपेनॉल इज एन एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल इज एन एल्डिहाइड, तो या तो आंसर सी है या आंसर डी है। अब आप सब जानते हैं कि जब प्रोपेनॉल को हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, साइनोहाइड्रिन को अल्कलाइन कंडीशन में लेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, और ये एसिडिक कंडीशन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये प्रोपेनॉल है आपका, इसको आप रिएक्शन करवा रहे हैं HCN से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH OH CN, that's your cyanohydrin। okay, this is your cyanohydrin। अब इसकी दो सिचुएशंस है मेरे पास।
पहली एसिडिक कंडीशन, तो अगर एसिडिक कंडीशन है तो ऑब्वियसली ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और अगर मैं मीडियम अल्कलाइन ले लूं तो ऑब्वियसली जो सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनाया हमने, वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जगह नहीं है हमारे पास, बट हम यहाँ लिख सकते हैं CONA, सॉल्ट बन गया। ठीक है, सो आई बिलीव alkaline condition is going to be the right option for me, because इससे प्रोडक्ट की yield जो है वो ज्यादा अच्छी बनेगी, बिकॉज KOH जो है वो बेसिकली कैटलिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए काम आएगा, प्रोड्यूसिंग कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट जो है ना वो रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाएगा, प्रोड्यूसेस कैटलिस्ट। कैसे कैटलिस्ट बनाएगा देख लो भाई, आपके पास है HCN और आप मीडियम ले रहे हो, लेट्स सपोज NaOH, तो ये बन जाएगा NaCN, और ये NaCN तुम्हारा कैटलिस्ट होता है, और यहां से बनेगा वाटर। सही है। 36. A carbonyl compound has the structural formula this, which is correct for the observation made when this compound is treated with given reagents. भाई इसमें कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड है, जब 2,4-DNPH से रिएक्शन कराओगे तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स आएंगे, तो या तो आंसर सी है या आंसर डी है, ऑप्शन ए इज गलत, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट, फेलिंग रिएजेंट, तुम सब जानते हो कि फेलिंग रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, तो जाहिर सी बात है रेड प्रेसिपिटेट देगा, रेड प्रेसिपिटेट्स यहाँ है, रेड प्रेसिपिटेट्स यहाँ है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ओके, question number 37, an ester is shown, which two compounds react to form this ester। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को दो बातें सुनाई, जब भी एस्टर का स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले एसिड का पार्ट आता है, तो दिस इज योर एसिड का पार्ट, तो 3 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू बी प्रोपेनोइक एसिड। और दूसरी बात ये कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये बेसिकली आपका अल्कोहल का पार्ट है, अल्कोहल का पार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COH, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 COH। अब इस अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ CH3 है, इस कार्बन के साथ भी CH3 है, इस कार्बन के साथ भी CH3 है, और ये OH है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यार ये तो क्लास में करवाया मैंने आपको, इसका नाम हो जाएगा 2-methyl propane 2-ol। That's what we have done in the class. So 2-methyl propane 2-ol कहाँ लिखा हुआ है, 2-methyl propane 2-ol यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, या तो आंसर ए है या सॉरी आंसर या तो बी है या डी, इसका मतलब ए और सी दोनों रॉन्ग। अब प्रोपेनोइक एसिड कहाँ लिखा हुआ है, प्रोपेनोइक एसिड यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि दोनों में चेक्स बी के अंदर आ गए। सही है। क्वेश्चन 38, which compound can be used to make propanoic acid by treatment with a single reagent? Propanoic acid, propanoic acid, तो डबल बॉन्ड के साथ जब CH होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COH में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये CH3 है, ये CH2 है, और CH कन्वर्ट हो रहा है COH में, लेकिन ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा होगा, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के साथ हो रहा होगा, राइट। सो आई थिंक A is going to be the right answer. Let's talk about B. Not at all, क्योंकि अगर मैं CN को COH में कन्वर्ट करूंगा तो प्रोपेनोइक एसिड के बजाय ब्यूटानोइक एसिड मिलेगा मुझे। सही है, तो ये गलत, इसमें प्रोपेनोइक एसिड ही नहीं मिलेगा, इसमें 2-हाइड्रोक्सी साइनोहाइड्रिन मिल रहा है बेसिकली आपको, या लैक्टिक एसिड कहते हो आप इसको, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड नहीं मिल रहा है, ये गलत। और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा भाई ऑक्सीडेशन की वजह से, प्रोपेनोइक एसिड तो नहीं मिलेगा मुझे।
ये भी गलत, ठीक है। तो CN किस में कन्वर्ट हो रहा है? COH। CHO, सॉरी, CN किस में कन्वर्ट हो रहा है? COH। CHOH किस में कन्वर्ट हो रहा है? कीटोन। ये याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39. A sample of sulfur consists mostly of sulfur 32. It also contains 4.2% sulfur 34 and 2.8 sulfur 36. No other isotopes of sulfur are present. What is the relative atomic mass of this sample of sulfur? Oh my goodness, that's easy. अच्छा, तो सबसे पहले तो परसेंटेज अबंडेंस निकालो सल्फर 32। मान लो कि टोटल परसेंटेज 100 है, उसमें से तुम सब्ट्रैक्ट कर दो 4.2 और 2.8 को, ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हारे पास कितनी आ रही है परसेंटेज? 93% आ रही है तुम्हारे पास। नाउ आई कैन फाइंड AR कैलकुलेट करना है, तो मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, mass of first isotope into abundance of first isotope, which is 93, mass of second isotope 34, abundance of second isotope 4.2, plus mass of third isotope 36, abundance of third isotope 2.8 divided by total abundance। तो total abundance यहाँ पर आपके पास कितनी बन रही है? 100 बन रही है। 100 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 32.19। सही है। सो ये हो जाएगा राउंड ऑफ होकर 32.2। सो 32.2 कहाँ लिखा है भाई? बी में लिखा है। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन गाइस। One molecule of an addition polymer containing 2,000 repeating units has an MR of this. The polymer molecule contains chiral centers. What is the possible monomer for this polymer? My goodness. So भाई आप सबसे पहले तो मोल्स निकाल लो यहाँ से। आपके पास 11 ये है आपके पास MR और 2000 रिपीटिंग यूनिट्स हैं। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास MR आ जाएगा विच इज 56। अबे MR निकाल लो डायरेक्ट, सही है। MR आ जाएगा 56। अब 56 है ना, एडिशन पॉलीमर कह रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन है। कौन सी एल्कीन है? चलें दोबारा से वर्किंग करते हैं। ये मेरा पहला स्टेप था, अब मेरा दूसरा स्टेप देखो। मैंने अभी CnH2n इक्वल्स टू MR, एल्कीन है तो फॉर्मूला यूज किया मैंने, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। ये हो जाएगा 12n प्लस 2n इक्वल्स टू 56। ये हो जाएगा 14n इक्वल्स टू 56। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 डिवाइडेड बाय 14। यूजुअली मैं ये कैलकुलेशन बच्चों को IGCSE या GCE O लेवल्स के अंदर करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी 56 डिवाइडेड बाय 14 आप लोगों के लिए भी इजी है। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? 4 हो गई। माय गुडनेस, ठीक है। थर्ड स्टेप, मैं CnH2n में 4 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा C4, 2 times 4 is going to be C4H8 and that's my monomer। सही है, C4H8। देखो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट, क्योंकि C4H8 नहीं है ये। ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि ये C4H8 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर आपको एक कायरल सेंटर चाहिए एंड दिस विल गिव यू कायरल सेंटर, ओके। क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 सिमिलर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ये C4H8 है 1 2 3 4 5, ये भी गलत, डी भी गलत, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। सही है। सी क्यों ठीक है भाई? सी का स्ट्रक्चर बना देते हैं आपके लिए। ये है आपके पास पॉलीमर बना रहा हूं डायरेक्ट। ये है CH2 सिंगल बॉन्ड,
CH, ये आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3। तो आप नोट करो, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, और जो यहाँ होगा वो फोर्थ ग्रुप, राइट? So this will give you chiral center, okay? All right. So this will give you chiral center, guys. Let me check the group. First group, second, third, और जो यहाँ होगा वो fourth, okay? That's the end of this paper. Good luck for the exam. मेरी दुआएं आप लोगों के साथ।